Hello students and welcome to Crop Course. In Agriculture Extension, we are learning the course Fundamentals of Rural Sociology and Educational Psychology. That is your Extension 111 course. और आज हम आपका लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, that is part A of your lecture 5. So, as we all know that Cropcourse is one of the largest online agri-edutech platform for agriculture education and exams. So here we help you to prepare for your state agriculture, horticulture, sericulture and fisheries department exams. Also, if you are preparing for your competitive examinations and for your PG entrance exams like ICR, JRF and MCER, then this is the very right platform for you. Also, do subscribe to our channel, like this video, share it with your friends, and also join us on Telegram. My name is Sharayu Deshmukh, and I am teaching you Extension Education subject. So here at Crop Course, you get a chance to learn with our experts team. Abhishek sir for soil science, Praveen sir for agriculture economics, Sneha ma'am for horticulture, Ganesh sir for agricultural botany. I am teaching you extension education, Harshvardhan sir for plant pathology, and Manish sir for agricultural engineering. Few experts will be joining soon. So, in this course, Rural Sociology and Educational Psychology, we have covered chapters till Social Stratification. हमने Social Stratification तक already cover किया है. Today we will start with Cultural Concepts. अभी Cultural Concepts में हम सबसे पहले देखेंगे Meaning, Definition and Characteristics of Culture. Next, we will see customs, its definition, characteristics, classification of customs. अभी जो customs है उसका classification किया है in folkways, conventions, mores and taboos and rituals. Next, we will see what is tradition. And lastly, we will see what is the role of culture in agricultural extension. So ये chapter जो है वो थोड़ा सा lengthy है, which is why we have divided it into two parts. In part A and part B. Also थोड़ा confusing भी है. Lot of students get confused within what is culture, फिर custom क्या है, फिर folkways, mores में confuse हो जाएंगे, rituals मतलब क्या exactly, tradition मतलब क्या. ये सारे जो terms है वो उसमें काफी लोग confuse हो जाते हैं. So do attend this session very attentively so that आपके ये सब concepts clear हो जाएंगे. So let's start with culture. The Sanskrit term for culture is Sanskriti. Okay, so Sanskriti क्या है? एक संस्कृत term है for culture. Culture को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं. And it is derived from संस्कार. ये जो word है संस्कृति, this term is derived from the word संस्कार. संस्कार से derive हुआ है. And संस्कार का meaning होता है ritual performance. Rituals मतलब क्या है? जो भी धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं, जैसे कि प्रेयर्स है या फिर चैंटिंग है, फास्टिंग है, तो ये सारे रिचुअल्स होते हैं. सो संस्कार मीन्स रिचुअल परफॉर्मेंस. So next is the term stands for sum total of human behavior. Culture का मतलब क्या होता है? It is the sum total of human behavior. Humans कैसे behave करते हैं उसका एक sum total होता है culture. अभी अगर हम एग्जाम्पल ले लें महाराष्ट्रियन पीपल का, ओके तो हर एक चीज अलग अलग होती है, जैसे कि लैंग्वेज, ओके दूसरे स्टेट से अलग है, या फिर फूड हैबिट से हमारी कुछ, देन क्लोथिंग हैबिट है, सो एक हेरिटेज है हमारा. सो ऑल दिस थिंग्स, ओके सो सम टोटल ऑफ दिस एवरीथिंग. इसमें सिर्फ इतना ही नहीं आता, और भी आता है, जैसे कि बिलीफ्स है, वैल्यू सिस्टम है. So sum total of this all things is known as culture. So the term stands for sum total of human behavior. Next, let us see the definitions. So culture is the pattern of learned behavior and the products of behavior that are shared by the members of a society and transmitted among the members of society. So क्या होता है? ये जो definition है ये जॉन एफ कुबेर ने दिया है. So culture is the pattern of learned behavior. हम कैसे act करते हैं, हम कैसे behave करते हैं. So culture is the pattern of our that learned behavior. अभी ये जो behavior है ना, ये हम कहाँ से सीखते हैं? We learn it from a surrounding. Okay? मतलब इसमें आते हैं हमारे पेरेंट्स, देन आर स्कूल टीचर्स, फिर फ्रेंड्स से हम कुछ सीखते हैं,
नेबर से हम कुछ सीखते हैं. Okay, so it is the pattern of learned behavior. For example, हम हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि आपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. So this is a learned behavior. वही हम हमारे किड्स को भी सिखाएंगे. And the products of behavior that are shared by the members of a society are transmitted among the members of society. और ये जो भी learned behavior है, it is shared among the members of society. और ये जो behavior है वो मेंबर्स में ट्रांसमिट होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ये जो लर्नड बिहेवियर है वो ट्रांसमिट होता है. अभी मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ कि मंदिर में जाने से पहले हम चप्पल बाहर निकालते हैं. तो ये क्या है? इट इज लर्नड बिहेवियर. ये हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया है. ओके, उनको उनके पेरेंट्स ने बताया है. सो लाइक दिस ये जो बिहेवियर है ये ट्रांसमिट होते हुए आ गया और हम ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे. So, the culture is the pattern of learned behavior and the products of behavior that are shared by the members. Culture क्या है? It is shared by the members of a society and are transmitted among the members of society. So, ये जो अभी next definition है given by Taylor is a very important definition. Okay, culture is that complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom, and other capabilities and habits acquired by man as member of society. इसका मतलब टेलर ने क्या किया? सब कुछ इसमें इंक्लूड किया. मैन का नॉलेज, फिर बिलीफ, जैसे कि हम ताबीज पहनेंगे तो क्या होगा. ओके, फिर आर्ट है, मॉरल, लॉ, कस्टम, अदर कैपेबिलिटीज है, ह्यूमंस की मैन ने अक्वायर की हुई कुछ हैबिट्स होगी. ये सब कुछ क्या किया है? टेलर ने एक ही डेफिनेशन में इंक्लूड किया है. सो कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which include knowledge, belief, arts, morals, law, custom, and other capabilities and habits acquired by man as a member of society. So कल्चर जो है ना वो सोसाइटी का एक पार्ट होती है. सपोज अभी ये सोसाइटी है, दिस इज सोसाइटी एंड ये जो है ये कल्चर है. ओके, सो कल्चर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ that smallest unit of culture is cultural trait. कल्चर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? कल्चरल ट्रेट है. दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन JRF एग्जाम में, तो MCR में भी पूछा जा सकता है. Now culture is of two types. First one is the material culture. अभी material culture में सब objects आते हैं जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, कार, बुक्स, कार एक्सेट्रा. ओके, ये सब कुछ मटेरियल कल्चर है. दीज आर टेंजिबल और मतलब क्या हम इसे टच कर सकते हैं एंड मोर ओवर दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. तो इसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल कल्चर कहते हैं. एंड इन नॉन मटेरियल कल्चर ये ऐसी चीजें होती है विच वी कैन नॉट टच. ओके, दीज आर इनटेंजिबल और ये ह्यूमन मेड नहीं होती है. दीज आर ऑटोमेटिकली इनकलकेटेड, जैसे कि आइडियाज है या फिर बिलीफ सिस्टम है हमारा, कुछ वैल्यूज है, नॉलेज है. ओके, next point is characteristics of culture. So culture is learned. Okay, हम culture के साथ bond नहीं होते हैं. Okay, by birth ही हम में कुछ culture होता है, ऐसा नहीं होता है. We learn it from others. हम हमारे parents से, हमारे neighbors से, friends से, हमारे teachers से culture सीखते हैं. Okay, so man is not born with culture, but he learns it through different agencies like parents, religion, school, communication, etc. मतलब जो कल्चर है वो बायोलॉजिकली ही ट्रांसमिट नहीं होता है. ओके, मतलब ऑटोमेटिकली हम उस कल्चर के हैं तो हमें वो कल्चर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है. कल्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड बायोलॉजिकली, वी लर्न इट फ्रॉम आवर सराउंडिंग. अभी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि मंदिर के बाहर चप्पल वगैरह निकाल के हम जाते हैं मंदिर में. सो ये बात हम जब बॉर्न हुए होते हैं तब से हमें मालूम नहीं होता है कि मंदिर के बाहर हमने चप्पल निकाल के जाना चाहिए. ये चीज हम सीखते हैं दूसरों से. या फिर रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स. हम जब बॉर्न होते हैं, हम जब
बॉर्न होते हैं तभी से हमें ये मालूम नहीं होता दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जो है वो हमें ये सिखाते हैं, सो दे आर इनकलकेटिंग कल्चर विद इन अस। ओके, क्योंकि ये हमें बाय बर्थ ही नहीं मिलता है, हम ये सीखते हैं दूसरों से। अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज अगर कोई बच्चा इंडियन बॉर्न है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, लेकिन वो बचपन से ही किसी फॉरेन कंट्री में है, सो वो कहाँ का कल्चर सीखेगा? ऑब्वियसली वो अदर कंट्री का ही कल्चर सीखेगा। सो दो वो इंडियन है, लेकिन कल्चर जो है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं हो सकता, वो हम बाहर से लर्न करते हैं, तो वो बच्चा फॉरेन कंट्री का कल्चर ही सीखेगा। सो ये मीनिंग है इस पॉइंट का। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू दैट कल्चर इज लर्नड। मैन इज नॉट born with culture, but he learns it through different agencies. Next point is culture is transmitted. It is transmitted from generation to generation by its members. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर क्या होता है? ट्रांसमिट होता है थ्रू दी मेंबर्स। इसका सबसे इजी एग्जांपल है ना, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसमिट होती है, मतलब हमें हमारे जो एल्डर्स है वो सिखाते हैं, बात बात करते करते हम वो सीख जाते हैं। ओके, धीरे धीरे। सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय मेंबर्स। Next point is culture is shared. So the benefits of culture are shared by its members. Example, custom, tradition, values, beliefs, these all are shared by man in social situation. जो culture है ना, वो क्या उसके जो benefits है या फिर जो culture है वो members में share होता है। For example, हम ले सकते हैं कि आर्यभट्टा ने जीरो इन्वेंट किया। ओके, सो ऐसा नहीं है कि अकेले आर्यभट्टा ही जीरो को यूज करेंगे। इट इज नाउ, अभी जीरो भी हमारे कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। ओके, हमारे कंट्री में हम सब लोग जीरो का यूज करते हैं। मोर ओवर इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यूनिवर्सली सब लोग जीरो का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया है जीरो तो वो अकेले ही यूज करेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। सो द बेनिफिट ऑफ कल्चर, ओके, इट इज शेयर्ड बाय दी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मेंबर्स जो है सोसाइटी के, वो कल्चर के बेनिफिट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, वो कल्चर को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कस्टम्स है, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब कुछ शेयर करते हैं। ओके, पीपल in social situation. These beliefs and practices are adopted by all equally. ये जो beliefs है, practices है, ये सब लोग कैसे adopt करते हैं? They are adopted equally by the human beings. Next is culture is gratifying. Okay, it provides the opportunity for satisfying man's needs and desires. अभी man's needs में क्या आता है ना? Basically like we have shelter, food, clothing, money, then कुछ reputation है, status है. So these are the man's needs. So culture, it gives us an opportunities to satisfy the man's need and desires. These needs may be biological or social. Next is culture is adoptive. ओके, सो कल्चर क्या करता है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट इट हेल्प्स अस टू एडजस्ट। ओके, इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ वेरियस काइंड. People living on lands of extreme water scarcity or cold or heat adjust to their cultural behavior to adapt to the situation. उस situation को adapt करने के लिए अभी सपोज अगर कोई लोग हैं जो एक्सट्रीम वाटर स्कैसिटी में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में रहते हैं, नहीं तो कोई बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हीट, तो वो लोग क्या करते हैं? दे एडजस्ट देयर कल्चरल बिहेवियर टू अडेप्ट टू दी सिचुएशन। सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए दे एडजस्ट देयर कल्चरल बिहेवियर। सो नेक्स्ट इज कल्चर इज इंटीग्रेटिव, मतलब क्या? इंटरकनेक्टेड। कल्चर कैसा होता है? इंटरकनेक्टेड। सो ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ each other. The development of culture is the integration of its various parts. कल्चर का डेवलपमेंट कब होता है? जब अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेशन होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल फूड है, ओके, क्लॉथिंग है, देन हेरिटेज है, फिर कुछ वैल्यू सिस्टम है, बिलीव्स है,
Okay, then what all we can have? Food, clothing, heritage. Okay, fine. Values, beliefs. इतना ही, हाँ, लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक हम कंसिडर करते हैं. ओके, सो कल्चर कैसे बनता है? ये सारे फैक्टर्स को इंटर ये सब फैक्टर्स का इंटर कनेक्शन जब होता है तब एक कल्चर बनता है. ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड से ही हमने मान लिया कि कोई, चलो ये डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं तो ये साउथ इंडियन है. ऐसा नहीं होता है, सिर्फ फूड से ही हम नहीं कह सकते ये बात. ओके, हम उनकी क्लॉथिंग देखते हैं, लैंग्वेज कौन सी वो बोलते हैं, फिर उनका फूड हैबिट कैसा है, उनका हेरिटेज कैसा है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम बोल सकते हैं दैट यस दिस पर्सन इज अ साउथ इंडियन. ओके, सो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, दे आर interconnected with each other. So, for example, value system is interlinked with mortality, customs, beliefs, and religion. Okay, लेकिन ये भी बहुत easy example है जो मैंने आपको अभी अभी बताया. So, by this point, you can remember that this point that culture is integrative. Next is culture tends to build ideas for conformity. The culture specifies required patterns of behavior which are considered ideal patterns and are followed by its members. So culture में क्या होता है ना कि कुछ required pattern of behavior होता है. Okay, जिससे हम क्या करते हैं that it is the ideal pattern. उस ideal pattern के हिसाब से हमने behave करना चाहिए. You should follow that ideal pattern of behavior. Thus culture acts as a means of social control. जब आप उसी आइडियल पैटर्न को लेकर बिहेव करते हैं, उसी आइडियल पैटर्न के साथ आप चलते हैं, सो वी कॉल, तब क्या होता है, एक सोशल कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है सोसाइटी में, एंड इट डिफाइन सिचुएशन, गोल्स, एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ इट्स मेंबर्स. नेक्स्ट इज कल्चर इज एक्यूमुलेटिव. ओके, सो एक्यूमुलेटिव में क्या होता है? कल्चर इज नॉट अ मैटर ऑफ मंथ और ईयर. कल्चर एक सिर्फ मंथ या फिर ईयर का मैटर नहीं होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसमें कुछ नया हमेशा ऐड होते जाता है. ओके, स्लोली स्लोली कुछ तो नई चीजें ऐड होती जाती है. मेनी कल्चरल ट्रेट्स आर बोरोड फ्रॉम आउटसाइड एंड दीज आर एब्सॉर्ब्ड इन दैट कल्चर विच अडॉप्टेड. मतलब क्या, कई सारे ऐसे कल्चरल ट्रेट्स हैं जो जो दूसरे जगह से, ओके, फ्रॉम आउटसाइड, ये क्या होते हैं, हमारे कल्चर में हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम धीरे धीरे उसे एडॉप्ट करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करते हैं, तो इंग्लिश, इंडिया में तो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, ओके, इन ओल्डन डेज. बट क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हुआ, दैट टाइम इंग्लिश यूज करने लगे लोग. ओके, एंड नाउ इट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ अ कल्चर. ओके, अभी इंग्लिश भी जैसे हमारी एक लैंग्वेज ही हो गई है. सो ये क्या होता है दैट सम न्यू कल्चर जो है वो आउटसाइड से आया और हमारे कल्चर ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, आवर कल्चर हैव नाउ अडॉप्टेड इट. As culture is accumulative and combines the suitable cultural trait. Okay, अभी इसमें और एक एग्जांपल है जैसे कि पिज्ज़ा. ओके, पिज्ज़ा पहले हमारे कंट्री में तो हम खाते ही नहीं थे ड्यूरिंग गोल्डन डेज. इट इज इटालियन फूड. बट क्या हुआ, अभी तो पिज्ज़ा जैसे हमारे भी कल्चर में हमने एडॉप्ट कर लिया है. Okay, so culture is not a matter of month or year. It is a continuous process and adding to a new cultural trait. अलग अलग cultural traits क्या होते हैं, add होते हैं. Many cultural traits are borrowed from outside and these are absorbed in that culture which adopted. I hope that this point is also clear to you. Now next is culture varies from society to society. हर एक society का एक अलग अलग culture होता है. Okay, every society has its own culture and ways of behaving. हर एक सोसाइटी का खुद का एक कल्चर होता है और खुद का एक वे ऑफ बिहेविंग होता है, वे ऑफ एक्टिंग होता है. इट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर बट अकर्स डिफरेंटली इन वेरियस सोसाइटीज. एवरी कल्चर इज यूनिक इन इटसेल्फ फॉर स्पेसिफिक सोसाइटी. हर एक कल्चर इस स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए यूनिक होता है. सो यस, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं हमारे. 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर के. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड देम. एंड अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको मालूम होनी चाहिए. ये यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज द एथनोसेंट्रिज्म.
So it is the tendency of a society to consider its own culture as best and others as inferior. मतलब ethnocentrism मतलब क्या होता है कि हमारा ही कल्चर सबसे बेस्ट है, बाकी के कल्चर इंफीरियर है। ओके, हम ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे हमारा कल्चर सबसे बेस्ट और बाकी के जो कल्चर है वो कैसे है, इंफीरियर है वो। ओके, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ सोसाइटी, किसी सोसाइटी की ऐसी टेंडेंसी होना कि हमारा कल्चर बेस्ट है, बाकी लोगों का इंफीरियर है, इसे हम क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। नाउ नेक्स्ट इज एक्सनोसेंट्रिज्म। ओके, तो ये क्या होता है, इट इज द ऑपोजिट टू एथनोसेंट्रिज्म। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो फॉरेन का है ना वो बहुत बेस्ट है। ओके, एंड हम हमारी लाइफस्टाइल, हमारे आइडियाज को हम इंफीरियर समझते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, सो व्हाट इज फॉरेन इज बेस्ट, one's own lifestyle and ideas are inferior to those of others. नेक्स्ट इज कल्चरल डिफ्यूजन। सो कल्चरल डिफ्यूजन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना इज द डिफ्यूजन। सो कल्चरल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेड्स, कुछ ऐसे कल्चरल ट्रेड्स होते हैं ओके, इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन अ सोसाइटी, वो स्प्रेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अदर सोसाइटी। अभी इसका एग्जाम्पल, फिर से हम पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, जैसे कि ये जो पिज़्ज़ा जो है वो मोस्टली इटालियन कंट्री, इटली में ही लोग कंज्यूम करते थे, बट नाउ इट हैज़ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड इन आवर कंट्री। ओके, वो तो क्या हुआ है ना कि वो जो कल्चरल ट्रेट है, ओके, जो फूड हैबिट है, वो कल्चरल ट्रेट वो हमारे कंट्री में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्प्रेड हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज कल्चरल लैग। अभी लैग का मीनिंग क्या होता है ना, पीछे हटना या फिर पीछे पीछे पड़ जाना, इसे हम लैग कहते हैं। सो कल्चरल लैग मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ पीपल्स कल्चर डू नॉट चेंज। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना लोगों के, कुछ कल्चर के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ओके, सम पार्ट्स ऑफ पीपल्स कल्चर डू नॉट चेंज as to other traits. It means that one or more phases of culture have moved ahead. कुछ phases जो है कल्चर के वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जो phases है कल्चर के वो पीछे ही रह जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेना डाउरी सिस्टम, ओके, डाउरी सिस्टम अभी भी कई जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है, सो दैट इज कल्चरल लैक। अभी इक्वालिटी इन मेल एंड फीमेल, अगर हम ले इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, सो यस अभी काफ़ी जगहों पे इक्वालिटी है बिटवीन मेल एंड फीमेल, लेकिन ऐसे कई सारे रूरल एरियाज है जहाँ पे मेल एंड फीमेल आर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल, तो वो भी क्या है, कल्चरल लैग है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। सो क्या होता है एक्चुअली कल्चरल लैग में, दैट सम पार्ट्स ऑफ पीपल कल्चर दे डू नॉट चेंज। कुछ पार्ट ऐसा होता है कल्चर का जो चेंज नहीं होता है, सो इट इज लैगिंग बिहाइंड, that is known as cultural lag. Next is the cultural inertia. The resistance to change by people in culture is cultural inertia. मतलब क्या कि लोगों को किसी कल्चर को चेंज करना ही नहीं है। ओके, दे रेजिस्ट फॉर सम काइंड ऑफ चेंज। ओके, उन्हें कुछ चेंज नहीं चाहिए किसी एस्पेक्ट में रिलेटेड टू द कल्चर, सो दिस इज नोन एज कल्चरल inertia. So now let us see what are customs. So customs are socially prescribed form of behavior. मतलब क्या, socially एक कैसा आपको behave करना चाहिए. Okay, so it is the prescribed form of behavior, transmitted by tradition and enforced by social disapproval of its violation. So क्या होता है, it is the prescribed form of behavior, आपने कैसा behave करना चाहिए, so it is the prescribed form of that, and also अगर आपने उसे वॉयलेट किया, मतलब इफ अगर आपने कुछ जो बिहेवियर के जो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स है, तो अगर आपने उसमें से किसी का वॉयलेशन किया, देन सोसाइटी विल नॉट अप्रूव दैट। ओके, सोसाइटी विल डिसअप्रूव इट। सो द सोशली accredited ways of acting are the customs of society. मतलब क्या, सोसाइटी में ओके कि जो भी सोसाइटी ने आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ बिहेवियर दिया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, that is known as customs. And also violation of these
prescribed form of behavior will lead to some social disapproval. Next is the characteristics of customs. So first one is customs are interwoven. मतलब क्या customs ना एक दूसरे में interlinked होते हैं. Customs are interwoven. सेकेंड इज वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. अभी हमने सोशल ग्रुप्स का चैप्टर पढ़ा ही है. सो उसमें हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं. सो ये जो कस्टम्स है ना वो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग होते हैं. ओके, सो दी कस्टम्स दे वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. नेक्स्ट इज रेगुलेट मैंस एक्शन. कस्टम्स क्या करते हैं? इट रेगुलेट्स दी मैंस एक्शन. अभी मैंस एक्शन जैसे हर रोज उठ के ऑब्वियसली हम ब्रश करते हैं, देन वी बाथ, वी ग्रूम आवरसेल्फ, फिर हेयर कटिंग है या फिर नेल्स कट करना है. सो दीज आर दी मैंस एक्शन. सो कस्टम क्या करता है? इट रेगुलेट्स दी मैंस एक्शन. नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इजीली. कस्टम्स जल्दी चेंज नहीं होते हैं. इनफैक्ट अगर हमने उसका वॉयलेशन किया तो सोसाइटी विल नॉट अप्रूव इट. ओके, मतलब क्या ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इजीली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स. कस्टम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स में किया है. फोकवेज, कन्वेंशंस, मोरेज एंड टैबूज एंड रिचुअल्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे अगली क्लास में. Okay, and I will tell you this very properly so that you don't get confused within what are folkways and what are conventions. काफी easy examples के साथ मैं आपको ये next lecture में explain करूँगी. Okay, so thank you so much.